हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दृष्टिकोण। तो आज हमारे दृष्टिकोण का फाइनल राउंड है, फ्रेशर्स वर्सेस सीनियर। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के दृष्टिकोण से, जिसमें हमारा टॉपिक है इंडिया शुड बॉयकॉट फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग स्वदेशी प्रोडक्ट। सो टू इम्प्रूव आवर इकोनॉमी वी नीड टू बी वोकल फॉर द लोकल टू मेक इट ग्लोबल, as this would increase our employment at the local level. But on the other side, what about the global cooperation? Isn't it be good to have a consumer experience? For that, I would like to call Kajal and Anshuman to speak for the motion. We all know the history of Swadeshi movement was aimed at boycotting British products. Now it's a high time that we repeat the history to boycott foreign products. Overwhelming control of foreign MNCs, wherein 2/3 or even more market share is held by foreign brands. If we produce all our components in the country, it will lead to manifest employment generation, technology development, and a lot of economic value addition will be added to the downstream value chains. To state an example, to look at Japan, which has advanced through its own technology, 4%, only 4% of foreign brand cars are sold in Japan, whereas in India, that percentage is 85. To be specific, Sonam Wangchuk said that we should boycott Chinese products because it is using the money against us and threatening our privacy. And the most important point in this is that MNCs is threatening the growth and economy of MSMEs, that is medium and small scale industries, whereas the core competencies of MNCs in huge investment, strong R&D and cost leadership are the restrictions to the growth and economy of MSMEs, and government should concentrate on how to grow our industries rather than in how to make easy for the foreign brands to increase their market share. Thank you. The dawn of the 19th century witnessed the birth of a new vision, a Swadeshi and a Swaraj vision that gave us independence. As said by Mahatma Gandhi, that Swadeshi is the only doctrine that is consistent with the law of love and humanity. भारत पहले से ही इतना आत्मनिर्भर था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि हमारे गांव में इतना प्राइमरी प्रोडक्शन होता था कि गांव में सारी चीजें वहीं बन जाती थी, और सिर्फ बाहर से आता था नमक, वो भी हमारे शहरों से। यानी कि प्राइमरी प्रोडक्शन गांव में होता था और वो शहरों में सप्लाई होती थी उसकी। अभी जो इंडिया का मॉडर्न इंडिया में जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर होता है हमारी एमएसएमई से, यानी कि मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि बनाती है 29% ऑफ जीडीपी और 48% शेयर है उनका एक्सपोर्ट्स में। इंडिया एनविजन्स द पार्टिसिपेशन इन द पोस्ट कोविड-19 ग्लोबल सप्लाई चेन एंड टू अट्रैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारा ये एम है कि हम प्राइमरी प्रोडक्शन 50% तक जीडीपी के ले आए और भारत आत्मनिर्भर बने। Now I would like to call Sejal and Pooja to speak against the motion. Before I begin, I would like to ask my opponents that even if there was a slightest chance of us becoming self-reliant, then why was Make in India introduced in the first place, which itself invited foreign companies to come and produce goods? ये बात तो हम सब जानते हैं कि फॉरेन टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया में कितने एडवांसमेंट आए, और ये तो एक फैक्ट है कि एफडीआई इंट्रोड्यूस होने के बाद इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट 36% से बढ़कर 64% हो गया। सो व्हाई नॉट। और आज वर्ल्ड में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कभी भी डेवलपमेंट के लिए फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनाया एक कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। और इंडिया फॉरेन गुड्स इसलिए ख़रीदता है क्योंकि स्किल्ड लेबर की कमी की वजह से वो उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट सेम प्राइस पर नहीं बेच सकता। तो बजाय हर चीज़ को बॉयकॉट करके सेल्फ रिलायंट बनने के, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को उस तरफ क्यों नहीं धकेलते जिसमें हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एज है, जैसे कि सोलर एनर्जी, आयुर्वेद, नेचुरल रिजर्व्स, स्पेस साइंस और बहुत कुछ। At last, I would like to conclude by saying that India's productive capacities must be unleashed before the lion called Make in India can actually roar. बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड एक्सेप्ट स्वदेशी गुड, ये बात बोलने और सुनने में देशभक्ति से ओतप्रोत लगती है, पर जब हम इसे गौर से समझते हैं तो ये हमारे देश को 30 साल पीछे ढकेल देती है। सन 1991 में जब हमारे देश में लाइसेंस राज था, विदेशी सामान और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रोक थी, तब हम एक ऐसी स्थिति में आकर खड़े हो गए थे कि हम सिर्फ 2 हफ्तों तक ही विदेशी बिलों का भुगतान कर पाते।
देश में महंगाई दर 6.7% से बढ़कर 16.7% पहुंच गया था। तब सरकार ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जैसे कदम उठाए। नतीजन आज हम दुनिया की 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और हमारे देश की जीडीपी $3 ट्रिलियन के आसपास है। मान लीजिए हम विदेशी सामान की भारत में रोक लगा देते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता इससे हम ये साबित करते हैं कि हम ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करने से डरते हैं और भाग रहे हैं? हम क्यों उनके जितने अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट नहीं बनाते? हम क्यों अपने ही देश के लिविंग स्टैंडर्ड को घटा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आज हमारे पास इतना स्किल्ड लेबर है कि हम देश की आपूर्तियों को पूरा कर पाएं, और अगर सप्लाई पूरी नहीं होगी तो महंगाई दर बढ़ जाएगा, जिसके कारण आर्थिक आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होगी। अतः अगर हम दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध तोड़ेंगे तो वह भी हमसे दूर जाएंगे। इसके चलते हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर काफ़ी असर पड़ेगा और हम क्रूड ऑयल जैसी महत्वपूर्ण सामग्री का आयात भी नहीं कर पाएंगे। अभी तक आपने हमारे चारों स्पीकर्स के दृष्टिकोण सुने, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे दृष्टिकोण के सेकंड राउंड से, जिसका नाम है पराक्रम, जहाँ पे हमारे सारे स्पीकर्स एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा अपने सभी स्पीकर्स को, ताकि वे अपने सवाल रखें। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है मेरी अपोनेंट टीम से कि जो हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इंडस्ट्रीज है वो 111 मिलियन पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, और यदि एफडीआई इंडिया में आएगा तो कॉटेज इंडस्ट्रीज हमारी, जैसा कि अभी पाया गया कि सफर कर रही है, और इन लोगों का प्रोडक्ट यदि मार्केट में नहीं बिकेगा तो इन लोग सफर करेंगे और एम्प्लॉयमेंट रेट गिर जाएगा इंडिया में। इन लोग कॉम्पिटिशन देखिए, मेन रीजन इनका तो ये लोग reason उस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए। एक जन अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो उसका मेन रीजन ये कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के उस लेवल तक वो पहुंच ही नहीं पाया है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कंपटीशन हटा दोगे। हम ये नहीं चाहते कि इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो ही ना करें, हम ये चाहते हैं कि वो एक्चुअल कंपटीशन के थ्रू बाहर आए। अब आप मुझे बताइए, कंपटीशन जैसा लेवल कि पे आपने आके आपकी प्रोडक्ट टीम भी ने कहा, सस्टेन करेगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 85% जो ऑटोमोटिव है वो इंपोर्ट किए जाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शुरू में तो हमने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया ही नहीं इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, तो आप सडनली कैसे बॉयकॉट करके उन अनस्किल्ड लेबर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो स्किल्ड देखिए, प्रोडक्ट ये बना के आपके मैक्रो हाथ में दे इकोनॉमिक्स दें? में कोई भी चीज एकदम सडनली नहीं हो जाती, इसमें धीरे धीरे वर्क करना पड़ता है। इसमें तो हमें इंडिया धीरे धीरे वर्क इन्वेस्ट करना चाहिए ना, हमें धीरे धीरे वर्क धीरे करना धीरे चाहिए, हमें करके ह्यूमन हमें रिसोर्स उस पे। लेवल तक आना तो चाहिए। हो तो रहा है। आप हाँ, तो कंपटीशन की उस बात लेवल कर तक रहे हैं, आएंगे तो लेकिन आपको जो बॉयकॉट करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर आप उस लेवल तक पहुंच गए तो बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं है। फॉरेन अगर ब्रांड क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर God, वो खुद खुद ब खुद चले आएंगे आपके पास। इंडिया ने इतना ट्रेड बैरियर रखा है, इसलिए तो फॉरेन गुड्स पे इतना लेकिन इसका टैक्स मतलब लगता है ये नहीं ना ताकि कि हर compete फॉरेन कर पाए। इन्वेस्टमेंट को नहीं वो नहीं, हटा के अपने आप से अगर इन्वेस्ट आप करना फॉरेन चालू कर दे, इतनी इन्वेस्टमेंट का स्ट्रांग भी नहीं बॉयकॉट है। करोगे तो उससे इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा और वो डेफिनेटली कम होने वाली है। आप अभी जो लोग हम $3 ट्रिलियन ऐसे पर समझ है, रहे हैं कि हम लोग इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बंदी करा देंगे, रॉ मटेरियल्स का बिल्कुल ही बैन कर देंगे। बैन की बात नहीं चल रही है, मैं इतना Finished कहना products चाह की बात रही हूँ चल रही कि फिनिश प्रोडक्ट की बात चल रही है। अभी एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि जो सारी चीजें हैं बाहर से होके हमारे पास असेंबल होने आ रही हैं, अपन सिर्फ एक असेंबली लाइन बन के रह गए हैं। हम इतना चाह रहे हैं कि जो सारी चीजें हैं वो इंडिया में हो, जिससे इंडिया को फायदा हो। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं हो पा रहा है बिकॉज इंडिया अपने ऐसे प्रोडक्ट असेंबल अगर करेगी, ऑटोमोटिव्स को आप ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स को, इन तीनों में मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया शुरू से तो सडनली कोई 2-3 महीने का कोर्स तो नहीं है स्किल डेवलपमेंट की, बस बोला और ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं किया। अभी बिल्कुल ही फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम चला रहा है इंडिया, बाहर नहीं जिससे निकालना है उसको। ये नहीं बात कर रहे हैं अपन, धीरे ऐसा नहीं है धीरे कि इंडिया ठीक है। ने अब आप मुझे ये बताइए, एक मिनट, बॉयकॉट भी जैसे अगर हम धीरे धीरे कर रहे हैं तो दे विल गेट टू नो कि हाँ हम लोग उनकी कंपनीज को अब नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो है अपना फॉरेन ट्रेड हम लोग कैंसिल करना चाह रहे हैं या फिर हम लोग उसे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं, तो इट विल अफेक्ट उनको। मतलब वो लोग भी हमारा जो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज दे रहे हैं, क्योंकि सबके पास सब कुछ नहीं होता है ना, कुछ हम लेंगे कुछ हम देंगे, तो व्हाई डोंट वी वर्क एज अ यूनिट। अगर आप अभी ये चीज नहीं करोगे तो ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लम करेगी। तो अगर आप पॉपुलेशन से, इंडिया की इतनी पॉपुलेशन से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग को जो चीज अभी चीप क्वालिटी पे मिल रही है वो लोग एकदम से उसके लिए कुछ ज्यादा पे करने लग जाए, या फिर कुछ, या तो उनको वो क्वालिटी मिले, वैल्यू ऑफ मनी मिलेगी, वो कॉस्ट, वो अच्छी चीजें मिलेंगी तो दे विल गो फॉर इट फॉर श्योर। अब देश के इतने ज्यादा प्रतिशत जो लोग हैं वो गरीब हैं। अब वो तो एक दिन सोचेंगे इकोनॉमी के बारे में, 2 दिन सोचेंगे, 10 साल की इकोनॉमी के आगे के लिए वो आज अपनी इंडियन जगह पर इंडस्ट्री बाहर को भी ब्लूम करने से किसी ने नहीं रोका है। हम लोग उनका कॉस्ट सपोर्ट करेंगे। नहीं, ये आपकी मर्जी नहीं है ना कि किसी बॉयकॉट का मतलब, बॉयकॉट का मतलब ये नहीं है एक्सट्रीम बॉयकॉट।
बॉयकॉट जिन चीजों में अब होना चाहिए बॉयकॉट जिससे का हमारे मतलब कल्चर तो में हम harm हो रहा है। स्टेटमेंट में नहीं कि Boycott एक्सट्रीम ही होता बॉयकॉट है। और एक्सट्रीम कम बॉयकॉट बॉयकॉट नहीं ज्यादा बोल सकते बॉयकॉट, आप। ये तो अब जैसे हाँ कि तो लॉकडाउन एक्सट्रीम लगा था तो बॉयकॉट इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता, जिनको कुछ जरूरी भी है चीज अगर डॉक्टर अपन ठीक है, इम्प्लीमेंट ठीक है, करते तो कंपल्सरी रूल्स ठीक है। एंड मैं आपसे एक ये रेगुलेशन सवाल के पूछना साथ चाहती हूँ सकते हैं। कि हाँ हाँ अगर आपने मेरे मोनोलॉग सुने होंगे तो उसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स के हाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में और पता चला होगा, ठीक है। अब मैं ये पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि जितनी भी चीजें हैं वो सब हम खुद से बनाएं, बाहर से ना लाएं, है ना। तो इसकी बजाय मतलब ऐसे तो हर कंट्री से हमारा इंपोर्ट ही बंद हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते ना, हम अरे ये चाहते वही हैं कि तो मैं कह इंपोर्ट रही जितना थी, रॉ एक्सपोर्ट मटेरियल बढ़ाएं हम हम। ये नहीं कह नहीं, ऐसे रॉ तो हम मटेरियल्स ऑयल भी अगर हम बनाते लोग हैं, मंगा रहे हैं, आपने प्राइम रॉयल मिनिस्टर का स्पीच रॉ सुना था, उन्होंने वैसे तो क्या आप कहा था क्रूड कि ऑयल हमें फिनिश ग्लोबल फिनिश सप्लाई प्रोडक्ट चेन भी को उस टाइट करके क्वालिटी के रखना थोड़ी ना होगा। होंगे कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो सके। अगर आप फिनिश प्रोडक्ट उस क्वालिटी उस क्वांटिटी प्राइस में देंगे तो अरे अगर तो कंज्यूमर सेटिस्फाई क्वालिटी हो रहा है तो प्रॉब्लम फिर क्वालिटी नहीं है अरे ना। तो ठीक है, तो हम लोग जिन रिसोर्सेज में अच्छे, लाइक वी आर गुड विद आयुर्वेदा, वी आर गुड विद द सोलर एनर्जी थिंग, ठीक है, हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग आइटम्स है, ठीक है, हम इससे दूसरी कंट्रीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये उनके लिए हमारी तरफ से रिसोर्सेज है। तो हाँ। हम लोग और इसको आपको लेके आगे ऐसा नहीं बढ़ते हुए लगता इस है पे क्या अपना कि कंट्रोल ये करें, जो चीजें और हैं, उसके साथ साथ हम जो नहीं कर पा रहे उस पे वर्क करें, तो वो ज्यादा बेटर होगा। हम लोग उस लेवल और तक आए, आपको ऐसा कम्पीट नहीं करें और लगता है क्या कंज्यूमर कि को चॉइस दे, जिन उनको चीजों फोर्स में नहीं हम करें। मतलब लीड कर रहे हैं, कोई आज जिन बोलो चीजों में हम लीड कर पा रहे हैं उन्हें हम आगे बढ़ाएं। अगर चाइना का कारोबार इंडिया में इतना ज्यादा है तो हमारा टारगेट ये क्यों नहीं है कि चाइना में जितना भी आयुर्वेद का कारोबार हो वो इंडिया का हो, या कंट्रीज में जितना भी आयुर्वेद जहां भी हो वो हमारा हो। इस पे फोकस क्यों नहीं कर रहे, बजाय सब चीज बॉयकॉट करके हम खुद से बनाने के। हम इस पे क्यों नहीं फोकस कर रहे कि जिस चीज में हम बेस्ट है क्योंकि उसी में हम आगे हाँ बढ़ते रहे। मेन बात ये है ठीक कि है किसी भी कमजोर चीज को किसी के बराबर बनाना होता है तो हमको देना पड़ता है प्रोटेक्शन। इसलिए इतना ट्रेड बैरियर है इंडिया में, ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से थोड़ा compete कर सके इंडिया, और धीरे धीरे जब वो उस लेवल पे आ जाएंगे तब हम अपनी इकोनॉमी सर पूरी फॉरेन ग्लोबलाइज करेंगे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अगर आप जिसके लिए मना कर रहे हैं, अगर वो अभी कम हो जाएगा तो हमारे एम्प्लॉयमेंट पे कितना असर होगा? जो हमारे बाहर की कंपनीज जो एम्प्लॉयमेंट हमारे लोगों अच्छा को एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में दे असर रही होगा है, तो एम्प्लॉयमेंट हमारी तो क्यों नहीं नहीं, होगा? ऑफ एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट तो कोर्स दे ही होगा। रही ना, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगा उससे। नहीं मेरी ज्यादा बात ऐसी है एम्प्लॉयमेंट कि कौन देता जो है आप ये देखिए। ज्यादा इंडिया में वो स्मॉल जो क्या वो इंडस्ट्रीज उनको वो है। पे कर पाएंगे जो उन्हें अभी मिल रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट अभी उन्हें मिल पाएगा अगर हम लोग ऐसे शिफ्ट कर जाएंगे उधर से कि ओके हम लोग जो यहाँ अच्छा मैन्युफैक्चरिंग किसी यूनिट को खोल रहे हैं। अच्छा एक एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किसी को जॉब मिलना काय में आसान है, एफडीआई वाली कंपनी में कि एमएसएमई, ये बताइए। किसी को ज्यादा पैसे के देखिए मिलना कोई अभी भी किसमें प्रोडक्ट आसान है है वो, अगर यहाँ पे होगा तो? तो वो हर कोई भी किसी प्रोडक्ट है को उन वो लोग ग्रो जो इसीलिए जॉब की आप करेगा बात क्योंकि कर रही उसके हैं पास वो हर किसी कंपटीशन को नहीं होगी। मिलती है। आप प्रोटेक्शन और देंगे तो इसका अपनी एडवर्स नहीं, इफेक्ट भी आप पड़ एक्चुअली सकता ऐसा है है ना। कि जो इंडियंस बहुत हैं सारी उनको वो मतलब एक्सपेल हो जाएंगे, उनको कंपेल हो जाएंगे वो लोग इस चीज के लिए कि उन्हें इसी मार्केट इसी इंडिया के प्रोडक्ट खरीदने हैं। और अगर बॉयकॉट उन्होंने चूज भी कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है ना तो कि वो धीरे चीप के धीरे हम बदले एक नहीं, आप महंगा हमने रिसोर्स तो चूज सबसे करें। पहले अपना पॉइंट यही रखा था ना कि धीरे धीरे हम करके उस लेवल पे लाएंगे। और उनका कैपिटल, सबसे बड़ी बात तो यही आ रही है ना कि जो एमएनसीज है, फॉरेन ब्रांड्स है, उनके पास इतनी सारी स्ट्रैटेजीज है अब अब मार्केट जैसे को कंट्रोल पर्सनल करने की। प्रोटेक्टिव लगे इक्विपमेंट्स इंडिया ने प्रोड्यूस किया, अब सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया इंडिया। तो तो हम धीरे लोग कुछ धीरे ही हुआ प्रोस ना, के लिए पहले इतने सारे कौन सा का वो नहीं कर सकते ना, हर उनको चीज एक्सेप्ट के नहीं कर प्रोस सकते। एंड कॉन्स होते हैं, ऐसे बट तो हियर हमेशा प्रोसेस प्रोस एंड आउटवे कॉन्स कॉन्स। रहेंगे। आप इसको इस टॉपिक को अच्छा जब भी हमें डिस्कस ठीक है, करोगे अब मुझे तो ये इसमें जानना है आप लोगों से कि अगर हम उस प्रोडक्ट्स को क्वालिटी तक ले आए, ठीक है, हम उस क्वालिटी तक ले आए तो हमें हाँ बॉयकॉट ही क्यों करना पड़ेगा? लोग अपने आप आएंगे ना, हम वर्ल्ड को ये दिखा पाएंगे कि हमने एक्चुअली प्रूव करके दिखाया है। बस हमारे पास वो मेड इन इंडिया का आप, टैग है प्रोडक्ट पे, क्योंकि इसलिए हम हमारे सपोर्ट नहीं पास कर रहे। अभी और कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि जो अगर आप उसे बॉयकॉट नहीं करेंगी ना तो वो और कोई तरीके से अपनी एमएसएमई ऊपर नहीं आ पाएंगी। वो अपना मार्केट, क्योंकि पहले तो इंसान वही चाहेगा ना, वो लेगा चीप प्रोडक्ट। आप जब तक उसे बॉयकॉट नहीं करेंगी तब तक उसको क्या वो इंसान अपनी दूसरी चॉइस चीज से ले नहीं रहा है? क्या खरीदेगा। कंज्यूमर उस चीज से सेटिस्फाई हाँ, होगा? आपको लगता कंज्यूमर है के कि कुछ इतनी राइट्स नहीं है हमारे क्या जो अपने? देश की पॉपुलेशन है वो कितनी ज्यादा है, तो हम आप उसको ये अच्छे टॉपिक अगर पॉजिटिव वे में 4 यूज साल क्यों बाद नहीं भी करें? डिस्कस करेंगी ना तो आप कभी ना कभी ये प्रोज एंड कॉन्स हमेशा आएंगे। लेकिन फॉरेन ब्रांड्स है, उनका मार्केट शेयर आपको पता है 2/3 से भी ज्यादा है। अगर आप अपन तो बस क्योंकि वो कंपनी ज्यादा कमा रही है हमसे, इसका मतलब ये नहीं ना कि हम उनके ईगो के आके और ईगो में अगर आप आड़े आ जाएं चाइना और फिर की हम बात अपना करेंगे प्रोडक्ट ना, चालू। आपने बोला था 1990 में हमारा भारत आत्मनिर्भरता, स्वदेशी मूवमेंट एंड ऑल दैट यू मेंशन्ड इन योर मोनोलॉग। सर ये बताइए अगर यस तब सब कुछ सही चल रहा था तो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत क्या पड़ी थी? मतलब आपको उस स्थिति ये थी कि वो मैं हमारी आपको अच्छे से समझाता 16.7। हूँ वो क्या हुआ चलिए था। हम वो हमारे बहस का मिलकर इंडिया समाप्त के करते हैं। एक्सपोर्ट्स, इंडिया इंपोर्ट ज्यादा तो कर रहा था और एक्सपोर्ट से, तो इंडिया का फॉरेन रिजर्व कोलैप्स हो स्पीकर से गया था, तो रिक्वेस्ट करना इंडिया को नहीं चाहूंगा नहीं, कि वो तब अपने हमारे पास दृष्टिकोण बाद सारी में जाना चीजें नहीं थी, तभी हमें फॉरेन ट्रेड को अलाउ करना पड़ा था, तो और तब तभी हमारे हमारी पास की इकोनॉमी हमारी ग्रो। प्रायोरिटीज, तब तो
वही तो इकोनॉमी में इंडिया अभी इतना अंतर ज्यादा आया है। डिपेंडेंट हम हो अभी गया था एक फॉरेन स्टेप लेने कंट्रीज के से लिए फॉरेन तैयार एक्सचेंज हैं रिजर्व ही इसलिए। चला गया था इंडिया का। हम वो तो स्टेप आइए लेने मैं के लिए आपको अभी भी बताता हूँ तैयार इसके नहीं बारे है, हम उसके साथ ग्रो करने के लिए तैयार है, पर वो हम स्टेप अभी नहीं ले सकते, हम उसको क्योंकि बॉयकॉट अगर नहीं कर इंडिया में सकते वो प्रोडक्ट्स टोटली, मान लीजिए दैट बनने विल लग गए, वो हमने आपको मैन्युफैक्चरिंग नेशनल स्टार्ट लेवल कर पे दी, अफेक्ट करेगी। तो हम उन्हें उस रेट पे नहीं सप्लाई मैं कर सभी पाएंगे ना वो प्रोडक्ट्स। मैं सभी तो स्पीकर फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डिबेट का टाइम ओवर हो चुका है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अगर हम स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इससे हमारे लोकल लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, और अगर अपन सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदे और सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें, उससे हमारे ग्लोबल मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, जो कि ओवरऑल हमारी इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। तो हमारे अपनी फेवरेट टीम को वोट करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जीएस प्रोडक्शन हाउस को फॉलो कर सकते हैं और अपनी फेवरेट टीम को वोट कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।